उस बच्चे के लिए उस बर्थडे पार्टी में जाना बहुत ज़रूरी था, बट मम्मी ने बोला कि नहीं, बहुत लेट है, सेफ़ नहीं है, तुम नहीं जाओगे। एंड उस बच्चे का रिफ्ट हो गया मम्मी के पापा से कि पापा ने मना किया है, मम्मी ने मना किया है। हुआ कैसे हैंडल किया जाए सिचुएशन? देखो, सबसे पहले समझो आपने नहीं जाने देना। आपको पता है ये तो सेफ़ है ही नहीं, कोई एडल्ट भी नहीं है, कुछ ठीक फीलिंग भी नहीं आ रही है और मैं नहीं जाने दे सकता। ना करना ज़रूरी है। ना करते हुए नेम कॉलिंग, ब्लेमिंग, पुरानी बातें, बदतमीज़ हो गया है, समझता नहीं है, मतलब रिस्पेक्ट ही ख़त्म हो गई है, समझ ही नहीं आ रहा है, ये कितना इमेच्योर है, या क्या हम इस तरह से बात कर रहे हैं? स्पेशली आप जब ना बोलते हैं, आपके बच्चे का एक रिएक्शन आएगा जो आपने बोला कि दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, दे माइट यूज वर्ड्स लाइक यू आर द वर्स्ट पेरेंट, everyone's parent is allowing, how can you do that, you're ruining my life, it's because of you that I don't have any friends. Don't take it personally. They're having feelings because they have been said no to. No one likes being said no to. You will also not like it. So when we say no, we feel bad. When we feel bad, when we feel something, it comes in our behavior. है ना? When you feel upset with your child, it comes in your behavior unless and until as an adult you realize कि ना, दिस बिहेवियर विल नॉट हेल्प मी। वो फ़िल्टर यूज़ करते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे बच्चे पे, पर मैंने अपना फ़िल्टर यूज़ किया और बोला आई नो बेटा, आई नो यू आर अपसेट। ये मैंने क्या किया? ऐसा थोड़ा ना कि मुझे गुस्सा ही नहीं आया, मैं बड़ी काम पर्सन हूँ। मेरे में आया, सब आया, आप मैंने रिएक्ट नहीं उसको किया? फ़िल्टर किया, उल्टा किया? मैंने अपना यूज़ किया वो मैकेनिज़्म। दो बातें, टीनेजर में वो मैकेनिज़्म अभी चल नहीं रहा प्रॉपरली, तो इसलिए वो एज इट इज़ ही बाहर आ रहा है, और अभी उसको बुरा लग रहा है तो वो बाहर आएगा। आपने ना किया है, अब मेरा बच्चा ना करने पे बुरा भी ना माने, क्या सोच रहे हैं हम, क्या एक्सपेक्ट करें? लेट्स बी रियलिस्टिक। सो दीज थिंग्स विल कम, डोंट टेक इट पर्सनली। तो क्या करें? सो वर्ड्स लाइक आई नो दिस इज़ हार्ड, आई नो यू आर अपसेट अबाउट दिस, I wish I did not have to say no. I love you too much to allow you to go there. And whatever they are saying, at some point, just observe. Just be there. When you observe and you're being there, your expressions, your body language, everything, your vibration, everything is going to the child. You focus on that. Because this will pass. That party will pass. वो सब खत्म हो जाएगा. What will stay is what happened in that room, in those interactions. Your child will understand everything. But what your child will take with them was how was he treated during that whole situation. So respect in spite of that behavior. You don't have to take disrespect just because you're giving respect. So if your child is calling names and is really crossing the line, you say that I think you're very upset. You don't normally talk like that, but this is not right. We don't talk like that in this house. We've never done that. But so I'm going to leave this room right now. Maybe you need some time, and when you feel better, you come to me and I'm there for you. So you give that boundary. You're not judging the child for even saying those words. You understand that they are at a place and they're making a mistake, and when they will be in the right, that when that amygdala shoots, the brain, it's just not working in that right frame of mind, but it will come back, right? So you wait for them to calm down, and then maybe you can have a discussion that whatever happened, what do you think about it? What meaning do you make about it? I know you were upset. And so you always have an opportunity to talk about it later. In that moment, समझाना, बुलाना, ये सब करना, avoid it. And continue with your parenting. नहीं आपको ठीक लग रहा, नहीं आप भेज सकते, मत भेजो. एक और एस्पेक्ट है यहाँ पे कि आपका बच्चा कभी तो जाएगा, है ना, बड़ा हो रहा है. So as a parent, at some point you will feel कि अब भेजना पड़ेगा धीरे धीरे. So while sending, or if you want to take the decision of sending or not, instead of just saying party 11 बजे तक, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, की जगह मे बी से अच्छा 11 बजे तक कहाँ पे, कौन 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 होगा, पेरेंट्स होंगे, किस तरह की पार्टी है, अल्कोहल होगी, नहीं होगी, मतलब सब कुछ पता करिए ना. मैं छोड़ने जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, मैं लेने आ सकती हूँ, आपके फ्रेंड्स का नंबर है, 11 o'clock तक आप कैसे आएंगे,
फिर जब मैं लेने आऊँगी या आपका फ़ोन आपके पास होना चाहिए, मतलब आप अपनी सारी डिटेल लेके सब तरह से जब आप इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे और कहीं आपको लगे कि अच्छा कोई एडल्ट नहीं है, तो बेटा मैं तो ऐसे नहीं अलाउ कर सकती, और जस्ट 13 विदाउट एडल्ट्स तो मैं नहीं कर सकती। तो यू हैव टू जस्ट पहले आप समझो तो सही, क्योंकि कभी ना कभी वो स्टेज आएगी जब आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी ना। यू आर टॉकिंग अबाउट 13 to 17, लेट्स बी प्रैक्टिकल। सो धीरे 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 इन्फॉर्म्ड डिसीजंस के साथ गिव योर चाइल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू बी रिस्पॉन्सिबल, कम बैक ऑन टाइम, यू यू पिकिंग द चाइल्ड इज़ कमिंग बैक। समझो बच्चे ने कहा था मैं 11 बजे तक आ जाऊँगा, बच्चा 1 बजे तक आया ही नहीं, देन दैट कुड बी अ सिंपल कॉन्सिक्वेंस कि बेटा अगर आप 1 बजे तक नहीं, अगर आप 11 o'clock तक नहीं आए तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी कंटिन्यू, देन मैं आपको ये परमिशन नहीं दे पाऊँगी। या नेक्स्ट टाइम जब ये सिचुएशन है, बोले बेटा ये तो नहीं हो सकता बिकॉज लास्ट टाइम इट वॉज टू स्ट्रेसफुल एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर यू, सो आई विल नॉट बी एबल टू अलाउ यू लाइक दैट, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। सो अ डिस्कशन फॉर्म ऑफ conversations while making rules and boundaries is also required, though you will have the last word till the time your child is really now growing and अब वो अपने decisions लेंगे, that will also be a time that will come। बच्चे बाहर ही चले जाते हैं, कितना कुछ संभाल लोगे आप ना, 20-21 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर लोगे अब उसके अंदर। अल्टीमेटली आपका कनेक्शन ही उनको बचाएगा, योर बिलीव इन देम ही उनको बचाएगा। सो स्टार्ट वर्किंग इन दिस डायरेक्शन विद योर चाइल्ड।